अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। हम खुद अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है। मैंने आज अपनी स्वयं की किराना दुकान डाली। स्वयं सहायता समूह से जुड़े तो जैसे लोन वोन लिए तो दुकान भी किए हैं और अपना घर और भी बनाए हैं, सब अच्छा से। यहाँ तक मुझे पहुँचने में मेरे हस्बैंड का और मेरे पापा जी का बहुत बड़ा हाथ है। जीविका के तहत से लोन लेकर के ई रिक्शा खरीद करके तो चलाते हैं, घर परिवार को भी। मेरा अभी जो बिजनेस है बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी 2 पैसा कमाने का हमको स्रोत मिल गया है, इनकम हो रहा है। यहाँ अपना इनकम बनाना, आत्मनिर्भर बनना, ये सब तो चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। और उस चुनौती के लिए लड़ने के लिए सारी दीदियाँ, देखिए इतना दीदियाँ बैठी हैं। हमारे छोटे किसान भी छोटे छोटे लेवल पे बढ़ते बढ़ते आज उन्नति कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लखपति दीदी भी हो गए हैं। Across India, the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission, or DNRLM, is reshaping rural lives. What began with small savings and lending groups for women has now federated over 50 lakh women in community institutions called cluster-level federations. The program has now grown into a collective movement of dignity, resilience, and economic opportunity. Women who once struggled to make ends meet now run businesses, make household decisions, and shape their communities' futures. By acquiring financial literacy, business acumen, market access, and economic decisions, SHG Didis are slowly becoming the prime movers behind the quiet transformation and diversification of rural livelihoods in our vast and complex country. The 3IE team went to villages across 5 states to meet SHG members, federation leaders, and program implementation teams. The idea? To get the story of more than a decade of NRLM from those at the center of the mission. Over weeks, we met hundreds of women across ages, educational levels, and social classes. Some are new to the program, others have grown with it into confident business owners, community resource persons, decision makers in collective enterprises, empowered women on the path to economic independence. With access to credit and skills trainings, women are now becoming economically independent, taking the role of entrepreneurs and job creators. In Madhya Pradesh, Lalita Pal took her first step into entrepreneurship with DNRLM. आजीविका मिशन से मतलब बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है और इसके माध्यम से ब्यूटी पार्लर का काम किया है। 3-4 लड़कियों को रखी हुई हो। ब्यूटी पार्लर के बाद में प्रेस प्रिंटिंग का भी काम होता है। बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है और हम 2 कार्य कर रहे हो। In Jharkhand, Ajmat Bibi expanded her family's stick-making business with a small loan. लोन लिए हूँ 45,000, उसको बढ़ाने के लिए लेबर लोग को पेमेंट देने के बाद से जो मेरा बचत हो रहा 10 से 15 तक महीना कमा रहे हैं। From shops and farms to transport and services, women are building diverse livelihoods. Women are stepping into new sectors like services and transport. They are emerging as business innovators. हम जीविका के तहत से लोन लेकर के अपना सिस्टम अपना पैर पे खड़ा हो गए, ई रिक्शा खरीद करके तो चलाते हैं, घर परिवार को भी। और अभी का परिवार मेरा बहुत ही शौक से जी रहा है। जीविका के ही दीदी थी कैडन,
वही बताई थी कि मशरूम लगाइए दीदी, वो जैसे जैसे बताई लगाए, सबको बना बना के भी खिलाए। हम अपना मेहनत करते हैं इसलिए कि हम आगे बढ़े। 10 से 12,000 रुपया हो जाता है। These changes are not just about earning income and becoming economically independent. Women speak of something deeply transformative and empowering, respect within their households and communities, and a stronger voice in family and enterprise decisions. मुझे पहले बाहर निकलने में बहुत शर्म लगता था, क्योंकि लोग मेरा देखकर पहले से ही मजाक उड़ाते थे और फिर मजाक सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत, जैसे एक जंग कहिए कि एक जंग लग जाए कि ये लाख हो गया कि निकलता ही नहीं। लेकिन जब मैं समूह में आई, VOBK का काम की, ग्राम संगठन का लेखाकार 5 VO देती थी। जब मैं ग्राम संगठन में मिली, सारी दीदियों लिखने पर इतना प्यार मुझे मिला, इतना प्यार, मैं भूल गई कि मैं विकलांग। चेंज होने के बाद में हमारे 10 BOD का निर्माण हुआ। 10 BOD के बाद में हमारे 7 BOD इसमें जुड़े हुए थे। जिस क्लस्टर में हमारा संचालिका बनाई गई, जहाँ सेंटर खुला, तो हम वहाँ गए। फिर हमने वो लेडीज़ों के जेंट्सों के बीच में मीटिंग रख के उनको समझाया। समझाने के बाद में हमने उनको ये साधन प्रेस सलूक लेके उनको अपनी कंपनी से जोड़ा। किसान महिलाएं वो खेती का काम भी करें, पर साथ के साथ हमारी कंपनी से भी जुड़ी हुई रहे और हमारी कंपनी से भी उनको बेनिफिट मिले। Improved incomes are also improving well-being. Convergence linking with social and health programs are enabling people to take better health decisions. Women like Baby Devi are leading the shift to organic farming, supplying not just to markets, but kitchens feeding children. जब से हम लोग जो रासायनिक खाद का जब यूज करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग का कीमत भी लगता था और ज़्यादा बीमारी भी होता था। हम लोग जैविक वाला काम जो स्टार्ट किए हैं, अपना बच्चा का भी देखभाल सही से करते हैं, अपना उद्योग भी चलाते हैं, काम धंधा भी चलाते हैं। Women are stepping into roles once dominated by men. When men migrate for work, women carry the responsibility of running their family farms, trades, as well as their households. But now, they also seize new livelihood opportunities. स्टार्टिंग में मेरे पास 10 गाय थी, जिसका दूध मैं प्राइवेट डेयरी पर देती थी, जिससे रेट सही नहीं मिल पाता था और ना टाइम से पैसा मिल पाता था। जब दूध काशी मिल्क को देने लगे तो इनकम बहुत अच्छा आने लगा और अब धीरे धीरे गाय बढ़ा के इस समय मेरे पास 40 गाय हैं। इनकम तो अधिक आने लगा, 1 लाख से ऊपर, तो लखपति दीदी भी हो गए। सेंटर खोलने के बाद में हमने उनको बताया कि देखो दीदी, अगर आप इस माल को कहीं मंडी में लेके जाते हो तो मंडी में भी दूरियां होती है। बड़ा किसान तो चली जाता है, पर जब छोटा किसान होता है ना, तो उस किसान को 17 लोगों से तो मिलना पड़ता है। अब जब जैसे मान लो अगर अपने सेंटर यहीं खुल रहा है, यहीं सब कुछ हो रहा है, तो महिला यहाँ क्यों नहीं देगी। महिला काम करके उनके खाते में पैसा आता है ना, तो महिला को बहुत गर्व होता है कि मैंने 4 महीने 5 महीने खेती में काम करा, तो मेरे को मेरी कमाई का पैसा मेरे को मिल गया। Men are more mobile. They can migrate for work. Women's mobility is constrained by concerns of safety, caregiving responsibilities, and social norms. DNRLM is reversing this imbalance, bringing work opportunities and employment closer to women's doorsteps. जीविका दीदी के में आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ है, यानी घर से बाहर निकलने की जो परंपराएं हैं वह पूछिए मत है। Empowerment has come from within the existing foundations laid by DNRLM. Community resource persons. Women like Khatija Bano in Jharkhand and Anamika Kumari in Bihar are the backbone of this movement. बीके का काम करते करते 2021 में मैं APS के पद पे कार्यरत हुई, चुनाव हुआ है, जिसमें मैं अभी बकरियों को वैक्सीनेशन लगाती हूँ और दीदियों को मुर्गी वगैरह वितरण करवाती हूँ और जो भी सरकारी योजना आते हैं वो दीदी तक पहुँचाती हूँ। और बीच में मैं APS यानी एक्टिव वुमन का भी काम करती थी, जिसमें बैंक और समूह के बीच में
जो फाइनेंशियल जो होता था वो प्रोवाइड करवाती थी, और महीने में 10 से 15 हज़ार तक का इनकम हो जाता है। बैंक सखी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। हम और एक सेवा देते हैं कि गर्भवती महिला जिसे आने में सक्षम नहीं है तो डिवाइस लेकर के हम घर जाते हैं और घर से निकासी करके लाते हैं, उनका पैसा यहाँ आकर के दे देते हैं। जिनको वृद्धा पेंशन आता है तो वृद्धा पेंशन भी हम घर जाके निकालते हैं। बैंक सखी जब बने उसके बाद इसमें आने के बाद मेरा सर्किल बढ़ गया। These stories are about more than livelihoods. They are about dignity, equality, and voice. With Day NRLM, women are not just earning, they are deciding, leading, and shaping the future of their communities.